ഓരോ മകനെയും ഓരോ മകളെയും ഈ നിമിഷം സ്പർശിക്കണമേ. വൈദ്യാകാലം പോലെ ദൈവശക്തിയാ അങ്ങയുടെ മക്കള് നിറയട്ടെ. പൈശാചിക ശക്തികള് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് വിട്ടുമാറട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് മാരക രോഗങ്ങള് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് തീരാവേദനകള്, ദുരിതങ്ങള്, തടസ്സങ്ങള് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ. ഞങ്ങൾ ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ നിത്യപിതാവേ നിത്യപിതാവേ അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലെ അങ്ങയുടെ കൈകളെ ഉയർത്തണമേ. എല്ലാ ബലഹീനതകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ മക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നവരെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങള് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, ജീവിതത്തിന്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗമില്ലാതെ വലയുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാതെ ഉഴലുന്നവരെ ഈ നിമിഷം വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് സൗഖ്യപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ശക്തിപ്പെടട്ടെ. കൈകൾ കൂപ്പി കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക. കണ്ണുകളടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക. കർത്താവ് നിന്നെ സ്പർശിക്കുന്ന സമയമാണ്. നിമിഷം രോഗമുള്ളിടത്തേക്ക് ഓൺലൈനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ഇവിടെ തീർത്ഥാടനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും നിന്റെ കൈകളെ രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന രോഗാതുരമായ സ്ഥലങ്ങളിലെ കഴുത്തിലായാലും ഹൃദയത്തിലായാലും കരളിലായാലും ഉദരത്തിലായാലും എവിടെയാണ് എൻ്റെ ദൈവവേദന നിനക്ക് വേദനയുള്ളത് അവിടെ കർത്താവ് നിന്നെ സ്പർശിക്കുന്ന സമയമാണ്. അമ്മമാതാവ് കാനായിൽ എന്നതുപോലെ അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് സൗഖ്യമില്ല, അവർക്ക് രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ആൾത്താരയിലാണ് നീ, ആൾത്താരുടെ മുമ്പിലാണ് നീ നിൽക്കുന്നത്. ദൈവമാണ് നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്.
ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നവർ അത് നോർമലാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവ് നിന്നെ സഹായിക്കും. നിന്നെ സന്ധിക്ക് ഈ സമയം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് എടുത്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നോർമലല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കണ്ടതിൻ്റെ ഇപ്പോഴും കർത്താവ് സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ്. മുടി കൊഴിയുന്നവർ, ചുണ്ടയിൽ ശരീരത്തിലും പാണ്ട് വരുന്നവർ അവരെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അലർജി രോഗികളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൈകാലുകൾ നീതി കെട്ടുന്നവർ, ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇയർ ബാലൻസ് പോകുന്നവർ, അവിടെ ഇവിടെയും കഷത്തും മുഴയും കുരുവൊക്കെ സിസ്റ്റൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നവർ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അറിയാതെ ബ്ലഡ് പോകുന്നവരും ദിവസങ്ങളോളം ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നവരും അത് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വല്ലാത്ത ശരീരവേദന, എപ്പോഴും ഉദരത്തിൽ കുത്തി വേദനയുള്ളവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മക്കളില്ലാത്തവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, കാത്, മൂക്ക്, ഇതെല്ലാം പലതരത്തിൽ കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവർ, കേൾവിക്കുറവുള്ളവർ, മൂക്കിൽ ദശ വളരുന്നവർ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവ് നിന്നെ സ്പർശിക്കുന്ന സമയമാണിത്. അടിപ്പിണർ പോലെ വൈദ്യാഖാലം ഒരു ദൈവികമായ ശക്തി പരിശുദ്ധമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവികമായ നിമിഷങ്ങളിൽ സന്നിധാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യപ്പെടുന്നത് ശ്രുതികട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന, ആരാധന, ഹല്ലേലൂയ, 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 യേശുവേ, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരാധനേ പരിശുദ്ധനേ പരമോന്നത യേശുവേ, എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തോടെ പരിശുദ്ധനേ പരമോന്നത യേശുവേ, അണയുന്നു തിരുമുൻപിലാ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ആരാധനയെ ആരാധനേ പരിശുദ്ധനേ പരമോന്നത യേശുവേ, അണയുന്നു തിരുമുൻപിലാ അനുകൂടെ പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കൈവർത്തിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആരാധനേ പരിശുദ്ധനേ പരമോന്നത യേശുവേ, അണയുന്നു തിരുമുൻപിലാ അനുകൂടെ നോക്കണമേ. ആരാധനേ പരിശുദ്ധനേ പരമോന്നത യേശുവേ, അണയുന്നു തിരുമുൻപിലാ അനുകൂടെ നോക്കണമേ. വീണ്ടും കണ്ണുകളടക്കുക, കൈകൾ കൂപ്പുക, കർത്താവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക, അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം യാചിക്കുക.
मेरा नाम आशा एंटनी है। ये मेरा बेटी लरिया सेबास्टियन। मुझे इस वेदी पर साक्ष्य कहने के लिए अवसर देने के लिए माँ मरिया और प्रभु यीशु मसीहा को मेरा धन्यवाद। मैं पैदाशी केरला के हूँ। मैं अभी तमिलनाडु में डिंडुकल नाम के जगह पर रहती हूँ। मैं इस विधान 2023 दिसंबर 30 को लिया था। ये मेरा 8वां रिन्यूअल है। उसका मतलब मैंने 8 बार यहाँ पे आके प्रार्थना निवेदन समर्पित की थी। इस 8 रिन्यूअल में मैंने 40 निवेदन समर्पित किया था। उसमें से 12 निवेदन का आंसर मुझे माँ मरिया ने दिया है। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे इस चर्च के बारे में कैसा पता हुआ। कोरोना पीरियड में मेरे पति को पीठ का दर्द हुआ था। हम लोग ने डॉक्टर से दवाई प्रिस्क्रिप्शन मंगाई और दवा उसने डबल डोज लिया। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसका डबल डोसेज मेरे पति ने लिया, लेकिन उसको कुछ कमी नहीं महसूस हुआ। पीठ का दर्द बढ़ते ही जाते रही। सो मैंने डॉक्टर को कॉल करके बताया, इसलिए पीठ का दर्द मेरा पति का कम नहीं हो रहा है। सो डॉक्टर ने मुझे बोला अभी उसने ऑलरेडी डबल डोसेज लिया है, उसका लिवर और किडनी इस समय फेल माइट बी डेड ऑलरेडी फेल्ड। इस तरह डॉक्टर ने मुझे बताया। इसलिए तुम लोग एक काम करो, तुम लोग एम्बुलेंस बुला के कोई ऑर्थो डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह डॉक्टर ने मुझे बताया। तो मैंने क्या किया, गुडनेस टेलीविज़न और शालोम टेलीविज़न केरला के 2 क्रिश्चियन टेलीविज़न है, उसमें मैं देख के प्रार्थना कर रही थी। सो ऐसा यूट्यूब स्क्रॉल करते वक्त कृपासनम नाम का यूट्यूब मैंने देखा। वहाँ पे मैंने एक साक्ष्य सुना। उसमें उस लड़की कैंडल लाइट प्रेयर रिक्वेस्ट डालती है और उसको चंगा मिलती है। सो मैंने भी क्या किया, कृपासन के वेबसाइट ओपन किया, वहाँ पे मैंने कैंडल लाइट प्रेयर रिक्वेस्ट डाला और मैं सुबह 3 बजे डालती है प्रेयर रिक्वेस्ट और 7 बजे जब मेरा पति उठा वो चंगा हो गया था, उसके चंगा मिल गया था। इसी तरह मुझे माँ मरिया का पहला एक्सपीरियंस इसी तरह मुझे माँ मरिया से मिला। उसके बाद मैं ऑनलाइन उड़म्बड़ी ऑलरेडी मैंने लिया था, ऑनलाइन विधान मैंने ऑलरेडी लिया था, लेकिन मैं तमिलनाडु में हूँ और ये चर्च तो यहाँ केरला पे है। सो थोड़ा आने में मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं ऑनलाइन कम्युनिटी विधान ही ऐसे चल रही थी। मैं ऑनलाइन का प्रार्थना करती थी, ऑनलाइन का रिट्रीट में भाग लेती थी, उसे शेयर करती थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, शेयर चैट, FB और सब सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम सब में शेयर करती थी। सो मुझे क्या हुआ, मुझे आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस होने से मेरा हाथ पैर नहीं चलता था और जब भी मैं काम करती थी मुझे बहुत दर्द होता था हाथों में बहुत दर्द होने से मुझे घर का काम मैं नहीं कर सकती थी। सो मैंने डॉक्टर से कंसल्टिंग किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया आपको आर्थराइटिस है। सो मैं बोली मुझे समझ में आया। सो डॉक्टर ने मुझे कहा पेन किलर्स है और सूजन जाने का दवाई है, लेकिन उससे किडनी और लिवर फेल हो जाएगा। सो मैंने दवा नहीं लिया और मैं रेस्ट लेने के लिए बोला था मुझे, लेकिन मैंने रेस्ट भी नहीं लिया। एक दिन रात को सोने के लिए मैं गई तो रेस्टिंग पोजीशन में भी मैं काम कुछ नहीं करती, मैं जस्ट सोने के लिए गई, तभी भी मुझे चुप के दर्द होने लगा मेरे हाथों में। इस पॉइंट में दर्द होने लगा। दर्द होने से मैं सो नहीं पाती थी। सो मैं आके मैं सोचा मैं जपमाला करूँ करके मैं रोसरी करने के लिए प्रेयर हॉल में आके घुटना टेक लिया। घुटना टेकते मुझे प्रेयर करना मुझे नहीं हुआ, मैं फुट के रोने लगी। रोते वक्त मेरे मन में मैंने ऐसा बोला, माँ मरिया मैं कल सुबह होते ही मुझे सब काम करने के लिए मुझे काम करना होना चाहिए, एक पेन नहीं होना चाहिए, दर्द मेरा मिट जाना चाहिए।
ये दर्द से, और मेरे देयर इज़ नो स्ट्रेंथ इन माय हैंड, मेरे हाथों में कुछ शक्ति नहीं है। हाथों में शक्ति नहीं है, मुझे घर का चाबी नहीं लगा सकती हूँ, झाड़ू नहीं कर सकती हूँ, पानी नहीं भर सकती हूँ। ये सब ठीक हो जाएगा ना, मैं तुरंत कृपासन में, केरला में कृपासन में आके विधान ले लूँगी, पिलग्रमेज कविनेंट में ले लूँगी। इसी तरह मेरे मन में मैंने प्रार्थना किया। मैं सुबह उठा, मुझे एक ग्लास पानी तक मैं राइट हैंड से नहीं ले सकती थी। राइट हैंड से पानी लेने से मुझे रिस्ट में पेन होता था। लेकिन उस दिन मैं देखा, मैंने बर्तन कुछ धोया नहीं था और एक छोटा सा ग्लास लिया, वो भी ठीक नहीं था। बड़े कप में थोड़ा सा पानी में पिया, झाड़ू किया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आया, क्योंकि तमिलनाडु में सॉल्ट वाटर रहता है, नमकीन पानी रहता है, वो हम पी नहीं सकते, इसलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पानी आते हैं हमारे घर में। वो हम ड्रम में भर लेते हैं। मोटर रखा है, लेकिन उस टाइम पानी अच्छा से फोर्स में आएगा तो ही हम मोटर से हम पानी खींच के ड्रम में भर सकते हैं। फोर्स कम है तो हमें बर्तन में भरकर ड्रम में फिल करना पड़ता है। मैं देखती नहीं है, मैं ड्रम में पानी भरती रही, तभी मुझे पता चला मेरे हाथों के दर्द मिट गया है। उसी दिन से आज तक मेरे हाथों के दर्द कुछ भी नहीं है। उसी दिन जब मैंने ये चंगा महसूस किया, मैंने मेरे पति को बताया मुझे कृपासन में जाके विधान लेना है। मेरे पति ने बोला, तू आज रात को बोल रही है कल सुबह जाके विधान लेने का है, टिकट नहीं बुक किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने मेरे पति से और मेरे माँ से बोला मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं कृपासन में जाके विधान लेना चाहती हूँ। उस दिन आके मैंने पहला मेरा विधान लिया। उसे 40 विनती से 12 विनती भगवान ने मुझे उस विनती का उत्तर दिया, सॉल्यूशन दिया। अभी इसके पहले 2 बार मैं इस वेदी पर साक्ष्य बोल चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा साक्ष्य है। इसमें मैंने मेरे प्रिंसिपल सिस्टर के पास जाके कहा कि मुझे लीव चाहिए। उन्होंने मुझे पूछा काय के लिए लीव। मैंने बोला इसी माँ मरिया ने केरला में दर्शन दिया है, वहाँ पे मैंने विधान लिया है, वहाँ मेरे रिन्यू करने के लिए जाने का है। सिस्टर ने बोला तुझे मैं लीव दूंगी एक शिकायत पर, अपने यहाँ पे नैक एक्रेडिशन नहीं हो रहा है। 8 साल से हम परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अपने इंस्टीट्यूशन को नैक एक्रेडिशन सबमिट तक करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। मैंने सिस्टर ने मुझे बोला तू तेरा प्रार्थना विनती में रखने का अपने इंस्टीट्यूशन का नैक एक्रेडिशन मिलना चाहिए, तो तू मैं तुझे लीव देती हूँ। मैंने बोला मैं रखती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में मुझे कुछ ख्याल नहीं था कि मैं इस विनती को रखूं, क्योंकि उन लोग सिस्टर्स से मेरे पास बहुत, यहाँ 6 विनती हम रख सकते हैं एक बार रिन्यूअल के आएंगे तो, लेकिन मेरे पास बहुत सारा विनती था। मेरे दिमाग में वो है ही नहीं था। लेकिन मैं जब यहाँ पे आके वो प्रेयर इंटेंशन का पत्रिका मेरे हाथ में दिया, 6 विनती में मुझे लिखना चाहिए उसमें, तब मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि नैक एक्रेडिशन का विनती तुझे रखना चाहिए। ये भी पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि रेवरेंड फादर डॉक्टर जोसेफ कहते हैं कविनेंट रिट्रीट में, आप लोग अपने माइंड में एक 6 विनती सेट करके आएंगे यहाँ पे लिखने के लिए, लेकिन जब यहाँ पे आप पत्र लेके लिखने के लिए शुरू करेंगे तब आपको दूसरा कोई प्रेयर इंटेंशन विनती आपके दिमाग में आता है तो वो पवित्र आत्मा का काम है, प्रेरणा है। हमें उस विनती को लिखना चाहिए। मैंने 3 विनती मेरा पर्सनल लिखा, उसके बाद 4था विनती मैंने हमारा कॉलेज का एक्रेडिशन के लिए मैंने लिखा। उसके बाद मैं विनती रखती हूँ। उसके बाद मैं क्या मन में क्या सोचती हूँ, भगवान देख लेगा, मैं उतना उसमें जोर डाल के प्रार्थना नहीं करती। लेकिन मैं कॉलेज में जाने के बाद मैंने सिस्टर ने मुझे पूछा तूने विनती रखा, मैंने बोला मैंने रख के आया है। सिस्टर को भी मैंने कविनेंट विधान नमक सिस्टर को भी दिया और सिस्टर को बोला इस नमक को हम लोग किधर भी डाल के अपोस्तोलिक क्रीड बोल के प्रार्थना करने का और साइन ऑफ द क्रॉस डाल के प्रार्थना करने का, उस जगह पर जो दुष्टावी का जो कब्जा रहता है वो निकल जाएगा। वहाँ पे इट विल कम अंडर होली स्पिरिट कंट्रोल। वो जगह
पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाएगा करके मैंने सिस्टर को बता दिया। उसके बाद नैक कमेटी का हम लोग ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। नैक विजिट आने वाला था, उसके पहले ही मुझे पवित्र आत्मा का स्वर मुझे मिला 3.89। सो मैं अपने डिपार्टमेंट में जाके मैंने स्टाफ को और हेड को बोला इससे 3.89 ऐसे एक साउंड मैंने आज सुना। चर्च में जाके मैं अपने घर आ रही थी, मैंने इस साउंड सुना 3.89। सो हम लोग सब लोग मिलके गूगल में जाके 3.89 देखा तो A++ ग्रेड का पॉइंट है 3.89। जैसा पवित्र आत्मा ने मुझे बताया वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूशन को 3.89 मिला। उससे पहले जब नवंबर 6 को नैक कमेटी विजिट आया था, उसका पहले रात को शाम को मैं प्रेयर करती थी, महामरिया हमारे इंस्टीट्यूशन का नैक एक्रीडिटेशन का ख्याल रखना, आपका प्रसन्न सब सिस्टर को सबको बताना करके मैंने महामरिया से प्रार्थना किया। सो मैंने बाइबल ओपन किया तो इंग्लिश में मुझे एक बाइबल कोट मिला, आई एम योर लॉर्ड, डू नॉट डिसोबे मी एट एनी कॉस्ट। सो मैंने सिस्टर को बता दिया, सिस्टर ऐसा मुझे एक बाइबल वचन मिला है। मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया सिस्टर को, भगवान बोलते हैं मैं तेरा भगवान हूँ, मुझे डिसोबे नहीं करने का। मैंने सिस्टर को बोला सॉल्ट आप सिस्टर आप प्लीज़ सॉल्ट डालिए, क्योंकि नैक कमेटी को रिसीव करने के लिए मैं नहीं जा सकती, सिस्टर्स और उसके लिए कमेटी है हमारा कॉलेज से नियुक्त है, उन लोग ही वहाँ पे जा सकते हैं। सो सिस्टर ने मैं सुबह जाते ही सिस्टर को विश किया, सिस्टर गुड मॉर्निंग सिस्टर। सो सिस्टर ने बोला मैंने पवित्र सॉल्ट को अपोस्टलिक क्रीड बोल के साइन ऑफ द क्रॉस डाल के मैंने जहाँ हम नैक कमेटी को रिसीव करते वहाँ पे डाल दिया है करके सिस्टर ने मुझे बताया। उसी एक्रीडिटेशन में हमको A++ ग्रेड मिला। वो विजिट हमारा पहला विजिट था, पहला विजिट में A++ ग्रेड मिलना नामुमकिन है। इसलिए नैक कमेटी से हमको एक ईमेल आया प्रिंसिपल सिस्टर को ऐसा रिविजिट है करके, और मुझे भी एक खबर आया तो मैंने सिस्टर से जाके मिला। मैंने बाइबल खोलकर देखा तो एक इंग्लिश वचन, इंग्लिश बाइबल में पढ़ती है इसलिए इंग्लिश वचन मुझे मिला, देयर इज ए वास्ट मॉब डिसेंडिंग ऑन यू। उसके आगे पीछे बहुत सारा वाक्य है, वो बाइबल वर्ड ऐसा एंडिंग ऐसा होता है, समाप्त ऐसा होता है, बट डोंट वरी आई विल सेव यू। उसका मतलब है कि आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, डोंट वरी टेंशन मत लो, मैं आप लोग को सेव करेगा, आई विल सेव यू, मैं आप लोग को बचा देगा करके। सो मैंने सिस्टर को बोला ऐसे एक बाइबल वर्ड मिला है। उसी तरह उस विजिट बहुत ही टफ था, सब लोग कॉलेज के अथॉरिटीज़ बहुत ही परेशान थे। सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बोला प्रार्थना करना। सो मैंने प्रार्थना किया तो माँ मरिया यीशु प्रभु यीशु के सामने विनती करता ना, वो गाना मुझे मलयालम में मिला। सो मैंने सिस्टर को बता दिया और हमको A ग्रेड मिला। दूसरा साक्ष्य ये है कि मेरी बेटी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, वो अटेंशन डेफिसिट चाइल्ड है, ADHS अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। सो मेरे बेटी जो भी पढ़ती है वो पेपर में नहीं लिख सकती थी, जितना पढ़ा है उतना वो पेपर में प्रेजेंट नहीं कर सकती थी, वो बहुत हरी भरी में कुछ भी मिस्टेक करती थी। और सिर्फ यही नहीं, मेरे बेटी केरला में पढ़ती थी अप टू द 7th स्टैंडर्ड, 7वीं दर्जे तक वो केरला में पढ़ती थी। 8वीं दर्जे में मैंने उसे तमिलनाडु में शिफ्ट किया और स्कूल अथॉरिटीज़ ने मुझे बताया कि एडमिशन के वक्त हम लोग सेकेंड लैंग्वेज आपको हिंदी देंगे। उसके बाद मैं और मेरे पति जाके स्कूल अथॉरिटी से बोला तमिल मेरे बेटी को नहीं आता है, इसलिए मुझे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज दे दो। प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि सिर्फ दो लड़की हिंदी लैंग्वेज के लिए ऑप्ट किया है, चुना है, बाकी सब लोग तमिल चुना है, इसलिए हम लोग आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरे बेटी तमिल सीखने के लिए मजबूर हो गई थी, लेकिन 8वीं दर्जे में उसको तमिल कुछ भी नहीं पता है, उसको बोलने को भी नहीं आता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है टीचर्स तमिल में जो भी बोल रहे हैं। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में उसको तमिल बोलने के लिए वो सीखी।
वैसे उसका बोर्ड एग्ज़ाम्स आया तो टीचर्स उसको जस्ट पास मार्क देती थी तमिल में 35-40, क्योंकि उन लोग क्या सोचते हैं, ये लड़की बेचारी केरला से आई है, उसको तमिल नहीं पता, इसलिए उसको डिमोटिवेट नहीं करना करके मोटिवेटिंग के लिए सिर्फ पास मार्क देते थे। मेरे बेटे भी, वो भी छोटी है, उसको भी कुछ सीरियसनेस नहीं था। जब भी हॉल टिकट हाथ में आया उसने बोला मामा तमिल में मैं फ़ेल हो जाएंगी। और उसके पहले मैं यहाँ, मेरे बेटी के एग्ज़ाम के पहले यहाँ मैं 6th रिन्यूअल कविनेंट के विधान के 6th रिन्यूअल 6th टाइम वो कविनेंट रिन्यू करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। उसके पहले भी मैंने मेरे बेटी के लिए बहुत कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट रखा था, लेकिन मेरे बेटी ऐसा जल्दी प्रेयर नहीं करती, इसलिए इस बार मैंने कुछ भी नहीं रखा। पहले वो विनती जो मैंने रखा है उसका मुझे भगवान से सॉल्यूशन मिलने दे, उसके बाद ही मेरे बेटी का मैं रखेगी, ऐसा ही ख्याल में था मैं। सो मैं यहाँ पे विधान के पेपर कविनेंट विधान के पेपर बॉक्स में, कविनेंट बॉक्स में, विधान के उस बॉक्स में डालने के लिए मैं ऐसा आ रही थी प्रोसेशन के साथ। सभी मेरे कानों में एक आवाज़ सुना, लरिया फर्स्ट, लरिया पहले रैंक में आने वाली है करके। सो मैंने जल्दी से उस पेपर में 4th इंटेंशन में मैंने लिखा लरिया फर्स्ट करके मैंने लिख दिया। सो मेरे बेटी का हॉल टिकट हाथ में रख के मैंने प्रार्थना किया। मैथ्स मेरे बेटी को 60% मार्क मिलता था स्कूल में। उसको सब प्रॉब्लम आता है मैथ्स का, लेकिन वो मिस्टेक कर लेती थी। जब सम्स करते हैं ना उसमें बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। सो उसका 20 से 30 मार्क मिस्टेक में फाइनल आंसर नहीं मिलने के कारण वो खो बैठती थी। और इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक, इवन लाइक LIKE लाइक आई मिस कर देती, छोटा छोटा बहुत ट्रिवियल मिस्टेक वो करती थी। और टीचर्स हमेशा बुला के उसको डांटता था, काहे के लिए तू इस सब मिस्टेक कर रही है। सो मैं टीचर्स को बोलती थी कि मेरे बेटे एक हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट चाइल्ड है। सो मैंने माँ मरियम से बोला, माधा मुझे तो भरोसा है तुम मेरे बेटी के साथ है एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन मेरे बेटी को तो भरोसा देने के लिए मुझे कुछ बाइबल वर्ड्स दे दो। तमिल के लिए मैं मलयालम में नॉर्मली बाइबल पढ़ती थी, इंग्लिश में कॉलेज में इंग्लिश बाइबल है, इंग्लिश में पढ़ती थी। सो मैं ऐसा माँ मरिया के कृपासना माँ का एक फ़ोटो है मेरे घर पे, मैं मादा के मुँह ऐसे देखते वक्त माँ मरिया ने मुझे इंग्लिश में वो वचन दिया, एशिया 45 Chapter 45 verses 2, obstacle has become as mountain will disappear before you। उसका मतलब है आपके सामने पर्वत जैसा बड़ा समस्या खड़ी हो जाएगा तो भी कोई डरने की कोई बात नहीं है, वो डिसअपियर हो जाएगा। वो बड़ा पर्वत आपके सामने नहीं दिखेगा। सो मैंने मेरे बेटी को बोला, तमिल सब्जेक्ट तेरे सामने एक पर्वत जैसा खड़ा है, लेकिन भगवान प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो डिसअपियर हो जाएगा करके। और मेरे बेटी ने उस वचन को, तमिल का एक छोटा सा गाइड ही मेरे बेटी पढ़ती थी, उसके ऊपर इस वचन को एशिया 45 अध्याय वाक्य 2 को रख दिया, रख दिया। उसी तरह इंग्लिश में भी पवित्र आत्मा अपना वीकनेस में अपना सहायता करेगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 26 दिया भगवान ने। और साम से, भजन संहिता से 118 चैप्टर वर्सेस 25 दिया। और मेरे बेटी को मैथ्स में सिर्फ यही नहीं, मेरे बेटी मैथ्स का मंडे मैथ्स एग्ज़ाम है तो मेरे बेटी ने क्या किया, संडे स्पेशल ट्यूशन रखा था। सो ये मार्क्स के लिए नहीं आया मेरे बेटी ट्यूशन क्लास में गया और आने के बाद मेरे बेटी रोने लगा। सो मैंने बोला तू एक काम कर, एग्ज़ाम हॉल में जाके अपने घुटने नील डाउन, घुटने टेक कर कृपासना मादा का सॉल्ट डाल के अपोस्टल क्रीड बोल के तू प्रार्थना करने का, उसके बाद ही तू मैथ्स एग्ज़ाम स्टार्ट करने का। और जो भी स्पेशल क्लास संडे में टीचर ने जो कोचिंग दिया उससे एक भी प्रॉब्लम नहीं आया था पेपर में। इतना ट्यूशन में जो भी टीचर डिफ़िकल्ट है ये सम आएगा, इस तरह का प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं आएगा। द पेपर वॉज न्यू, टोटली नया सम्स आया था, इनडायरेक्ट सम्स आया था। इसके क्लास में 2-3 लड़के लोग चक्कर आके एग्ज़ाम हॉल में गिर गया, लेकिन मेरे बेटी को कुछ डर नहीं हुआ। सो वो मुझे आके बताया, माँ सब सम्स डिफरेंट आया था लेकिन मुझे कुछ भी डर नहीं आया।
और उसने अच्छा से पेपर लिखा, उसको आउट ऑफ 100 96 दिया ऑल टुगेदर आउट, और तमिल में उसको आउट ऑफ 100 89 मार्क मिला। जो तमिल मीडियम के तमिलियन स्टूडेंट्स को 87 84 74 मिला, उस जगह पे माँ मरिया ने मेरे बेटी को आउट ऑफ 100 89 दिया। ये मेरा इंग्लिश में भी फर्स्ट, यहाँ पे मैंने जो शब्द सुना था लरिया फर्स्ट करके, उस सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 98 दिया। उसका मार्क कभी भी 60 के आगे नहीं गया है। इसके लिए माँ मरिया को कोटि कोटि धन्यवाद। और इसके अलावा मेरे को बहुत सारे मिराकल्स मेरे ज़िंदगी में माँ मरिया ने लाया है। मेरा मिशन वर्क आप देखेंगे तो यहाँ से कृपासन पत्र, ये मैं यहाँ से 3 बंडल पत्र मिलता है जब हम विधान कॉन्वेनेंट रिन्यू करेंगे तो। उसके अलावा मैं 10 बंडल 25 बंडल्स पेपर लेके मैं चर्चेस हमारे वहाँ दिंडुकल पे आस पास के पारिश, मेरा चर्च नहीं आस पास के चर्च 6 चर्चों में मैं जाके मास में जाके इस कृपासन का पत्र देती हूँ और मेरा खुद का मिराकल्स बता के देती हूँ। फिर मैं बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, ट्रेन में इस पत्र को, तमिल पत्र लेती हूँ, इंग्लिश पत्र भी लेती हूँ मैं, देती हूँ। हिंदी पत्र भी मैंने लिया था ट्रेन में, 2 बंडल पेपर लिया था ट्रेन में दिया था मैंने, बट फिर बैलेंस पेपर था वो मेरा मुंबई में एक फ्रेंड है उसको मैंने भेज दिया और उसने वहाँ के एक सिस्टर्स कॉन्वेंट में जाके उस पेपर दिया। फिर मैं अनाथालय में मंथली, मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, लेकिन 1 बार 2 बार मैंने अनाथालय विजिट किया है, ओल्ड एज होम विजिट किया है। वहाँ पे मैं जाके वहाँ पे मैं जाके उन लोग को खाना दिया और मंथली मेरा इनकम से 1000 200 500 जैसा मेरे पास है वैसा हर मंथ मैं उन लोग को पैसा देती हूँ। यीशु मसीह को और माँ मरिया को मेरा प्रणाम और धन्यवाद।